नमस्कार, खबरें जारी न्यूज 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। बिहार के बाद बीजेपी की नजर बंगाल विजय पर है, लेकिन ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने 1 महीने के बंगाल मंथन के बहाने चुनावी बिगुल फूंक दिया है। बंगाल के बारुईपुर से इस अभियान का आगाज करते हुए अभिषेक बनर्जी ने 3 ऐसे लोगों को रैंप पर पेश किया जिन्हें चुनाव आयोग ने मृत घोषित कर रखा है। अभिषेक बनर्जी ने यह दावा किया कि एसआईआर बंगाल की जनता से वोट का अधिकार छीनने की साजिश है और इस साजिश में बीजेपी के साथ चुनाव आयोग भी शामिल है। अभिषेक बनर्जी ने बंगाल की जनता से यह आह्वान किया कि वो बंगाल जीतने के बाद दिल्ली चलने को तैयार रहे, तो लगे हाथ मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से भी साफ कर दिया कि वो बंगाल के लोगों का सामना करने को तैयार रहे। मंच से अभिषेक बनर्जी ने यह नारा दिया, चाहे जितना करो हमला फिर जीतेगा बांग्ला। सवाल यही, अभिषेक के 1 महीने का बंगाल मंथन किसको देगा टेंशन? ये रिपोर्ट। बाबूदा 2 चोखे, एक चोखे दुर्योधन और एक चोखे दुशासन। दिल्ली का लड्डू जो खाता है वो भी पछताता है और जो नहीं खाते हैं वो भी पछताते हैं। अब दिल्ली का लड्डू ज्यादा खा लिया और खाने का जरूरत नहीं है। अब दिल्ली संभलाइए। बंगाल को संभालने के लिए आपको माफिक दुराचारी नहीं चाहिए। बांग्ला जीते तुम्हें देश থেকে কি করে তাড়াতে হয় গণতন্ত্রের মাধ্যমে। বাংলাই পথ দেখাবে, বাংলাই দিশা দেখাবে, বাংলাই সারা ভারতবর্ষ জুড়ে। যতই করো হামলা আবার জিতবে বাংলা। বিজেপির দালালরা তৈরি থাকো, জ্ঞানেশ কুমার তৈরি থাকো, তৃণমূল দিল্লিতে যাবে। जतोई करो हमला आबार जीतबे बांग्ला, यानी चाहे जितना करो हमला फिर जीतेगा बांग्ला। रैंप पर मृत लोगों को लाया, अभिषेक ने जन जन को दिखाया। चुनाव आयोग को सरकार का दलाल बताया, बंगाल के लोगों से किया दिल्ली कूच का आह्वान। चुनाव आयोग को कर दिया सावधान। কোনোদিন মৃত ব্যক্তিদের র‍্যাম্পে হাঁটতে দেখেছেন? এখানে 2 জন ভদ্রলোক আছে, একজন ভদ্রমহিলা আছে, সবাই দেখতে পাচ্ছেন সবাই। আপনার নাম কি বলুন? মনিরুল ইসলাম মোল্লা। আপনার নাম কি দাদা? হরে কৃষ্ণ গিরি। আপনার নাম কি বৌদি? মিসেস মায়া দাস। এখানে আমি একা আছি, আমার পাশে 2 জন ভদ্রলোক, একজন ভদ্রমহিলা আছে। আসুন আমার সাথে আসুন। এই 3 জনকে দেখে কি মনে হচ্ছে আপনাদের? 2 জনের বাড়ি হচ্ছে মেটিয়াবুরুজ বিধানসভা আর বৌদির বাড়ি হচ্ছে কাকদ্বীপ বিধানসভা। কি আমি একা দেখছেন না 4 জন দেখছেন? এবার শুনুন, ইলেকশন কমিশন এদের দেখতে পাচ্ছেন না, এদের মৃত ঘোষণা করে দিয়েছে। এই জন্য আমি র‍্যাম্প বানিয়েছি। আর এরকম 3-4টে কেস না, খালি দক্ষিণ 24 পরগনা জেলায় 24 জন রয়েছে যারা জীবন্ত বহাল তবিয়তে রয়েছে, কিন্তু এদের দেখিয়ে দিয়েছে মারা গেছে। দেখেছেন? এই কারণে আমি তৈরি করেছি যে এদের কি চক্রান্ত, বাংলার মানুষ যাতে ভোটাধিকার প্রয়োগ না করতে পারে এদেরকে মৃত দেখিয়ে দেওয়া হয়েছে। আরে আমরা যতদিন আছি একটা মানুষের মৌলিক অধিকার আমরা যেতে দেবো না। দিল্লি আগামী দিন তৃণমূল যাবে। ममता बनर्जी के भतीजे और टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी ने 1 महीने के बंगाल मंथन का आगाज कर दिया। दक्षिण 24 परगना जिले के बारुईपुर से इस मंथन की शुरुआत करते हुए अभिषेक बनर्जी ने साफ कर दिया कि अब टीएमसी का कारवां जिला दर जिला पूरे बंगाल में कूच करेगा, जिसमें बीजेपी और चुनाव आयोग की कथित साजिश की पोल खोली जाएगी। इस दौरान रोड शो भी होंगे और रैलियां भी होंगी। আজকের এই সভা যেখানে 1 মাস ধরে আমি বাংলার বিভিন্ন প্রান্তে যাব, মানুষের পাশে দাঁড়াবো, বিশেষ করে এই এসআইআর প্রক্রিয়া চলাকালীন মানুষের যাতে কোনো অসুবিধা না হয় আমার সামর্থ্য অনুযায়ী মানুষের পাশে দাঁড়াবো। আগামীকাল আমি আলিপুরদুয়ার যাব, ফিরে এসে 6 তারিখ বীরভূম যাব, 7 তারিখ
উত্তর দিনাজপুর দক্ষিণ দিনাজপুর করে 8 তারিখ মালদা করব, তারপর 9, 10, 11, 12 টানা একদম জানুয়ারি মাস চলবে। আপনারা মাঠে ময়দানে লড়াই করবেন, আমিও আপনাদের সহকর্মী সতীর্থ হিসেবে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সৈনিক হিসেবে মাঠে ময়দানে আপনাদের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াই করব। কিন্তু আজকে এই সভা আবার জিতবে বাংলার যে শুভ সূচনা, এটা আমরা আজকে দক্ষিণ 24 পরগনা এবং বারুইপুরের মাটি থেকে এর শুভ সূচনা করলাম। যতই করো হামলা আবার জিতবে বাংলা, এই যে কর্মসূচি, এর প্রথম কর্মসূচি কেন বারুইপুরে হচ্ছে, কেন দক্ষিণ 24 পরগনায় হচ্ছে, কেন এই মাটিতে হচ্ছে, তার কারণ আমরা যখন কোনো শুভ কাজে বেরোই, বড় কাজে যাই, তখন মা বাবার আশীর্বাদ নিয়ে বেরোতে হয়। আমি বারে বারে বলেছি, কালীঘাটে আমার জন্ম হতে পারে, কিন্তু ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি মৃত্যু যেন এই জেলার মাটিতে হয়। কালীঘাট যদি আমার জন্মভূমি হয়, দক্ষিণ 24 পরগনা আমার কর্মভূমি। তাই আপনাদের সকলের আশীর্বাদ নিয়ে, ভালোবাসা নিয়ে, শুভেচ্ছা নিয়ে, স্নেহকে পাথেয় করে, আশীর্বাদকে পাথেয় করে আজ থেকে এই লড়াই শুরু করলাম বাংলার মাটিতে। बरुईपुर में बंगाल की जनता से रूबरू अभिषेक ने दो टूक कहा कि बीजेपी ने चुनाव आयोग के साथ मिलकर बंगाल के लोगों के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी और बंगाल के लोग इस बार नोटिस भेजने वालों को बंगाल के नक्शे से बाहर कर देंगे। এসআইআর আর মানুষ গণতান্ত্রিক ভাবে ভোটের বাক্সে জবাব দিয়ে করবে এদের বিরুদ্ধে এফআইআর। লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সির নামে 1,36,00,000 লোককে জোর জবরদস্তি নোটিশ পাঠিয়ে ডাকা হচ্ছে। আরে বিজেপির যদি শত্রুতা থাকে, আপনি নোটিশ পাঠিয়ে আমাকে ডাকবেন, আপনি নোটিশ পাঠিয়ে তৃণমূলের কর্মীদের ডাকবেন, আপনি নোটিশ পাঠিয়ে তৃণমূলের নেতাদের ডাকবেন। আপনি সাধারণ মানুষকে নোটিশ পাঠাচ্ছেন কোন সাহসে? যারা বাংলা না জিততে পেরে বাংলার মানুষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে, তাদেরকে আমরা জবাব দেবো না। একবার লাইনে দাঁড়াবেন, দাঁড়িয়ে ইভিএম এর বোতামটা এমন ভাবে টিপবেন, যারা আপনাকে নোটিশ পাঠিয়ে আনম্যাপ করেছে তাদেরকে বাংলার ম্যাপ থেকে চিরতরে বিদায় দিতে হবে। ममता बनर्जी की पार्टी ने एसआईआर के मुद्दे पर केंद्र सरकार के साथ आर पार की लड़ाई छेड़ दी। 2 दिन पहले अभिषेक बनर्जी ने दिल्ली में इस मुद्दे पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से मुलाकात की थी, लेकिन बाहर निकलते ही अभिषेक ने संदिग्ध सूची को लेकर चुनाव आयोग के खिलाफ हल्ला बोल दिया था। कहां से आया ये सस्पिशियस लिस्ट? कौन बनाया? आपका सॉफ्टवेयर चला के दिखाइए। चलो हमें छोड़ दीजिए, मीडिया वालों को दिखाइए कैसे सस्पिशियस लिस्ट बना, कौन सा सॉफ्टवेयर से कौन सा एल्गोरिथम रन करके, जरा आप मुझे बताइए। एक सवाल मीडिया के कोई भी मुझे बता दे, 7,66,00,000 वोटर्स बंगाल का वोटर लिस्ट में था, 58 लाख वोटर निकल गया, अब 7,08,00,000 वोटर। भाई जिस एक्सरसाइज को करने में 80,000 बीएलओ, 8,000 बीएलओ सुपरवाइजर, 3,000 एईआरओ, 300 ईआरओ, 23 डीईओ और पूरा मशीनरी लगा के जो आप 2 महीना में करें, इलेक्शन कमीशन के पास कौन सा ऐसा जादू है कि वो 1 घंटा में लिस्ट सैनिटाइज करके बता दिया कि वो 1,36,00,000 लोगों का डिस्क्रिपेंसी है? जादू छड़ी क्या है भाई? इससे पता चलता है कि आप कितने डरे हुए हो। आप चाहते ही नहीं हो लोग वोट दे। पहले वोटर सरकार तय करती थी, अब सरकार वोटर तय कर रहा है। यही तो बीजेपी का नया भारत है कि पहले वोटर तय करता था कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा, सरकार में कौन बैठेगा। अब सरकार तय कर रहा है कि पोलिंग स्टेशन में कौन जाएगा और वोट कौन देगा। अभिषेक के मुताबिक मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के साथ मुलाकात के दौरान उन्होंने उंगली उठाकर बात की, लेकिन उन्होंने उनकी उंगली नीचे करने को मजबूर कर दिया। हम लोग जब बात करना शुरू किए, पहली बात तो जब कोई बोल रहा था वो रोकने टोकने लग गया। He started losing his temper, मेरे तरफ उंगली उठाने लग गया। फिर मैंने बोला यू आर नॉमिनेटेड, आई एम इलेक्टेड, आपका उंगली नीचे करके बात करिए। हम लोग जो यहाँ पे बैठा हुआ है जनता का वोट से चुना हुआ है। बीजेपी के बदौलत
खाली आपका एक नोटिफिकेशन का बेसिस पे मैं यहाँ पे नहीं आया हूँ. वी आर आंसरेबल टू द पीपल एट लार्ज. यू आर आंसरेबल टू योर मास्टर्स. आई एम आंसरेबल टू द पीपल ऑफ माई स्टेट. इधर अभिषेक की गर्जना खत्म होती उससे पहले बीजेपी के प्रवक्ताओं की पलटन ने बंगाल में जंगल राज और गुंडा राज की मुनादी शुरू कर दी. लेकिन टीएमसी ने कुलदीप सेंगर का जिक्र कर बीजेपी की बोलती बंद कर दी कि एक मुख्यमंत्री जो संविधान की शपथ लेता है कि संविधान का पालन करेंगे, वो भारत के गृह मंत्री को धमकी देता है और दो बातें कहता है. पहला, अगर मैं ना चाहूं तो भारत के गृह मंत्री पश्चिम बंगाल में घुस नहीं सकते हैं. अगर मैं चाहूं तो वो होटल के कमरे से बाहर नहीं आ सकते हैं. मतलब अगर कोई नागरिक अपने संवैधानिक अधिकारों का प्रयोग करके जनता से संवाद करने, संपर्क करने जाना चाहता है, देश के गृह मंत्री जी जाना चाहते हैं, तो आप उनको धमकी दे रही हैं. ये धमकी क्या है? उनकी जान की बात कर रही हैं आप. ममता बनर्जी जी, हम जानना चाहेंगे आपसे. और इसीलिए जंगल राज, महाजंगल राज, गुंडा राज कैसा होता है? बिल्कुल ममता बनर्जी जैसा होता है. कि आप ही के विधायक जो थे कुलदीप सिंह सेंगर, जो बलात्कारी थे, कभी उसको रिहा किए जाते हैं, कभी आप लोग छुड़वाने की कोशिश करते हैं, कभी बिल्किस बानो के जो बलात्कारी थे उनको छुड़वाने की कोशिश, फिर ये कहना कि ये बलात्कारी नहीं, ये लोग संस्कारी लोग. बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के नामों में बलात्कारियों को बचाना, ये कहां नारी सुरक्षा वाली बात हुई? बीजेपी का इल्जाम है कि ममता बनर्जी बंगाल में हिटलर शाही चला रही, लेकिन टीएमसी ने यह कहकर बीजेपी को चुप करा दिया कि पिछली बार तो 77% थे, इस बार उतनी सीटें भी मुश्किल है. ये ममता बनर्जी एक तो महिला है, अपराधियों की सरकार बन गई है. टीएमसी की सरकार नहीं है, वहां अपराधियों की सरकार है. और महिलाओं के मुंह से भारत की संस्कृति में शोभा नहीं देता प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को गाली देना. लेकिन अब तो गाली देते देते महिला को पिटवाना शुरू कर दी ममता बनर्जी. ये महिला का पिटवाना इतना भारी पड़ेगा कि आने वाले दिन में इनको पता चलेगा. पहले नमाज पढ़ती थी, अब मंदिर बनवाने चली. ये रमखुदैया बन जाएंगे. भाजपा अमित शाह जी ये फ्लॉप एस्ट्रोलॉजर है. तो देखिए 21 में बोला था आपकी बार 200 पार, वो तो 77 में ही लॉक हो गया था. फिर 24 में लोकसभा इलेक्शन के पहले बताया अब ज्यादा सीटें होंगे, कम गया, वो रिड्यूस होकर 12 में चला गया. तो अमित शाह मुंह में कहते हैं वो तो फ्लॉप एस्ट्रोलॉजर है और प्रैक्टिकली होता है पूरा ऑपोजिट. तो वो इस बार वो अभी 30 क्रॉस करने का ये जगह पे भाजपा नहीं है. 30 क्रॉस करने का जगह पे नहीं है. अमित शाह भूल रहे हैं बंगाल का जनता उससे खफा हुआ है. एक तो डिप्राइव किया है बंगाल को, बंगाल का हक का रुपया नहीं दिया, मनरेगा का नहीं दिया, आवास का नहीं दिया, करीब 2 करोड़ रुपया नहीं दिया. बांग्ला लैंग्वेज को इंसल्ट किया भाजपा वालों ने. ममता बनर्जी को लेकर बीजेपी का गुस्सा समझ से परे नहीं. 3 दिन पहले बांकुरा से दीदी ने अमित शाह पर ऐसा हमला किया कि उसका असर अब भी बीजेपी नेताओं के चेहरे पर साफ नजर आता है. বড় বড় কথা, মিথ্যে কথা, বাংলায় শুধু অনুপ্রবেশকারী, কাশ্মীরে নাকি নেই. তাই যদি সত্যি হয় বন্ধু,
একটা কথার উত্তর চাই, পহেলগাঁও তাহলে কি আপনারা করলেন? দিল্লিতে কিছুদিন আগে যে ঘটনা ঘটে গেল, অনুপ্রবেশকারী বাংলা ছাড়া কোথাও নেই, তাহলে কি আপনারা করলেন? তাকে উত্তর দিতে হবে বাংলা ভদ্র বলে। আজকে আপনি তালকুটিরে লুকিয়ে আছেন। মনে রাখবেন, আমাদের যদি ইচ্ছে থাকতো, আমরা যদি অসৌজন্যতা করতাম, আপনাকে এক পা বেরোতে দিতাম না। আপনার ভাগ্য ভালো যে এত অত্যাচার করার পরেও আপনাকে আমরা আতিথ্যতা দিচ্ছি। এটা আমাদের দুর্বলতা নয়, এটা আমাদের ধর্ম, আমাদের সংস্কৃতি। জিজ্ঞেস করুন তো, 100 দিনের কাজ আপনারা বন্ধ করেছেন। আপনারা গীতা পাঠ করবেন? গীতা দেখেছেন? গীতা ছুঁয়েছেন? গীতা জানেন? তাহলে চ্যালেঞ্জ করে বলছি, শ্রীকৃষ্ণের উপদেশটা মন দিয়ে শুনবেন। শ্রীকৃষ্ণ কি বলেছেন? ধর্ম মানে ধারণ, ধর্ম মানে পবিত্রতা, ধর্ম মানে মানবিকতা, ধর্ম মানে বিভেদ নয়, বিদ্বেষ নয়, ধর্ম মানে শান্তি। আর আপনাদের ধর্ম আগুন লাগিয়ে বেড়ানো, আর আপনাদের ধর্ম দাঙ্গা লাগিয়ে বেড়ানো, আর আপনাদের ধর্ম বিভাজনের ধর্ম। আপনাদের ধর্ম কেক বিক্রি করছে, ভেঙে দাও, লুটে নাও। আবার কি? এক একটা উৎসবে এক একটা ধর্মের এক একটা পর্ব আছে। पश्चिम बंगाल में पहचान की राजनीति चुनावी गणित में अहम भूमिका निभाती। 2019 के लोकसभा और 2021 के विधानसभा चुनावों में बीजेपी ने हिंदुत्व के मुद्दों पर अच्छा प्रदर्शन किया था, लेकिन अब ममता बनर्जी ने बांग्ला अस्मिता को बीजेपी के हिंदुत्व के सामने खड़ा कर भगवा पार्टी के लिए चुनौती कड़ी कर दी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।